हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी मुलाकात किससे हो रही है? जोसेफ से। देखिए, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड। जोसेफ नाम का जो पर्सन है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जॉग करता है, दौड़ता हुआ जाता है। और कितने समय में जाता है? 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट 50 सेकेंड में जोसेफ पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। और बी पॉइंट से वो वापस टर्न अराउंड हो जाता है और पॉइंट सी तक डिस्टेंस कवर करता है। पॉइंट बी से पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, दैट इज 100 मीटर और टाइम टेकन बाय द जोसेफ is 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in moving from A to B and from A to C? हमें यहाँ पर दो केसेस हैं और उन दो केसेस में भी दो केसेस हैं। कैसे? पार्ट ए, पार्ट बी। और पार्ट ए में भी हमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है और पार्ट बी में भी हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम पार्ट ए, फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी। नाउ फ्रॉम ए टू बी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 300 मीटर। ठीक है ना? ए से बी की हमें डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 300 मीटर। एंड टाइम टेकन that is t. So what is time taken? 2 minute 50 second. Okay, so I convert this time in second. 1 minute में 60 second plus 50, so 2 6 are 12, it is 120 plus 50, so it is 170 second. So time is 170 second. Now we calculate the average speed. So first we calculate the average speed, then we calculate the average velocity. So average speed का फॉर्मूला हमें पता है, total distance traveled by the body upon में total time taken. Total distance upon total time. Now what is total distance? So total distance is 300 meter and total time is 170 second. Now we solve it. 0 से 0 cancel. 30 को आप 17 से डिवाइड कर दीजिए, you will get the answer. 17 1 the 17, 3 1 13, decimal 0. 17 7 za 7 7 za 49, 4 7 1 the 7 4 11. So 10 minus 9 it is 1, 2 minus 1 it is 1, again it is 0. Now it is 1.7 meter per second. So 1.7 meter per second is the average speed. Now we calculate the average velocity. Okay, average velocity is equal to total displacement upon time taken. Now total displacement, देखिए हमें पता है स्ट्रेट लाइन पाथ पर जब तक बॉडी की डायरेक्शन चेंज ना हो, मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहे हैं और बॉडी की जो डायरेक्शन है वो सेम रहे, बॉडी की डायरेक्शन यदि सेम रहे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो केस नंबर 2 में हमारा जो एवरेज स्पीड आया है वही एवरेज वेलोसिटी का काम करेगा। ठीक है ना? एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच? इट इज 300 मीटर and total time taken is 2 minute 50 second. So it means the average velocity is equal to average speed, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है. So it is also 300 divided by 170, it is 1.7 meter per second. Okay, now part B. In part B we have to calculate the average velocity from A to C. So from A to C. Okay, now from A to C, what is the total distance? Total distance is equal to AB plus BC.
पहले देखिए A से B और फिर B से C. This is the total distance. Now from A to B is 300 meter. Now from B to C it is 100 meter. So total distance is 400 meter. Now what is total time or time taken? What is time taken? Time taken is equal to, what is time taken from A to B? It is 2 minute 50 second. और अभी हमने सॉल्व किया था 2 मिनट 50 सेकंड कितना आया था 170 सेकंड. सो इट इज 170 सेकंड प्लस फ्रॉम B to C is 1 minute and 1 minute is 60 second. So it is 230 second. Now what is average speed? So average speed is equal to total distance upon total time, that is 400 divided by 230. We solve it. When we divide 40 by 23, we again get 1.7 meter per second. Okay, so 1.7 meter per second is average speed. It means in both the cases the average speed is same. Now we find the average velocity. For average velocity we need displacement from A to C. So what is displacement from A to C? तो देखिए initial point is A, final point is C. So what is the shortest distance? Total 300 है, इसमें से आप 100 माइनस करो, you will get 200 मीटर, है ना, 200 मीटर मिल जाएगा. So displacement is 200 मीटर, but time जो है वो तो वही लगेगा. A से पहले B गया और फिर B से C आया. डिस्प्लेसमेंट हमारा ठीक है 200 मीटर है, लेकिन टाइम हम उतना ही कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो टाइम इज 230 सेकेंड. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? नाउ एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ एवरेज वेलोसिटी is equal to 200 total displacement upon time taken. What is time taken? 230. So after dividing it we get 0.86 meter per second. This is the average velocity. ओके, सो इस न्यूमेरिकल में हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की. नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करिए अपने लविंग चैनल को फिजिक्स लैब. थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.